یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکشت رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی
مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حضرات کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے اور مناسب سمجھتا ہو اور بہتر سمجھتا ہو ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرانے والے آقا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں تو آپ کو ایک بات بھی سناتا ہوا چلو، مفہوم حدیث ہے کہ حضور ارشاد فرماتے جب کوئی بندہ اچھی بات دیکھتا ہے یا سنتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک بار کہا آپ کے نام اعمال میں ایک جنت میں درخت لگا دیا گیا، دوسرا بھی لگا دیا گیا، تیسرا بھی لگا دیا گیا، چوتھا بھی لگا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ شاکر رضا کہنا چاہتا ہے سب کچھ بدل سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ جب آقا نے فرما دیا ہے کہ ایک بار نہیں، بلکہ کسی نے پوچھا تھا آقا اگر دین میں سے کوئی ایک بار نہیں 100 بار، تو رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے 100 بار نہیں، اگر کوئی بندہ مومن 1000 بار کہے تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں 1000 درخت عطا فرمائے گا۔ تو نبی کا دیوانہ جو ہوتا ہے نبی کا نام سن کر کے خاموش نہیں رہتا، یہ تو برہان پور ہے۔ سبحان اللہ، یہاں کے لوگ اور یہاں کے نوجوانوں کے بارے میں نے سنا الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لہٰذا گزارش کرتا ہوں نبی کی تعریف سن کر کے خاموش نہ رہے۔ ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرانے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، درختوں کو اپنے پاس بلانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیرے قبر میں روشنی فرمانے والے آقا، جہنم سے بچانے والے آقا، جنت کا مزدہ سنانے والے آقا، ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے سینے سے لگانے والے آقا، حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الکلام، کلام الامام، اچھے رضا، پیارے رضا، سنیوں کے رضا، جنتیوں کے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کے شعر یا تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہوتا یا حدیث رسول کا خلاصہ ہوتا۔ یہ اشارہ اس حدیث کی طرف کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی، ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ السلام جن راستوں سے گزر جایا کرتے تھے، جن گلیوں سے گزر جایا کرتے تھے، صحابہ اکرام جو پیچھے آتے انہیں پوچھنا نہیں پڑتا کہ آقا کدھر گئے ہیں، سرکار مدینہ کس رخ گئے ہیں، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے حضور جن راستوں سے گزر جاتے تھے وہی راستے، وہی گلیاں خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، اور وہ راستے اور وہ گلیاں میرے مصطفیٰ کا پتہ بتایا کرتی تھی۔ کیا آپ نے شب برات کے حوالے سے یہ حدیث کو نہیں سنا کہ حضور علیہ السلام ایک روز حضرت بی بی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے اقدس میں تشریف لاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد آپ نماز ادا کرنے کے بعد میں حجرے مبارکہ سے نکل جاتے ہیں، اور نکل جانے کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آدھی رات کا حصہ گزر چکا تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں پہنچتے ہیں، اور جو وہاں مرحومین جو صحابہ کرام جلوہ بار تھے ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ہمارے آقا علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب دعا سے فارغ ہوئے فرمایا اے عائشہ یہاں تمہیں کس چیز نے لایا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے فدا کا بھی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ اور کہیں تو نہیں چلے گئے۔ حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ اے عائشہ سنو، آج کی رات شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات خاص اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔
اور یہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ المختصر میں نے پوچھا عالم خیال میں، اے ہماری ماں، اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، ذرا یہ تو بتائیے مدینے کے اندر تو تمام لوگ یا تو عبادت میں تھے یا اپنے گھروں میں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور ان گلیوں سے گزرے ہیں، ان راستوں سے گزرے ہیں، اور جہاں حضور تھے وہی کیسے آپ پردے کی حالت میں پہنچی؟ تو ہم سب کی ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی خوشبو عطا فرمائی تھی، ایسی خوشبو عطا فرمائی تھی کہ حضور جن راستوں سے گزر جایا کرتے تھے، جن گلیوں سے گزر جایا کرتے تھے، وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن آمد رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور فرماتے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کب کہا ہے جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والد محترمہ کے ساتھ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، اس دور میں ہوائی جہاز نہیں بلکہ پانی کے جہاز چلا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کشتی میں سوار ہے، جہاز کا کیپٹن اعلان کرتا ہے اے لوگوں ہمارا جہاز ان قریب سمندر کے بھور میں پھنسنے والا ہے، لہٰذا اپنے رب کو یاد کرو۔ چنانچہ یہ خبر سنی تو حاجیوں کے اندر ایک بہت بڑی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، کوئی اپنی والد کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی والدہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کو یاد کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ رو رہے ہیں، مگر انہی لوگوں کے اندر انہی حاجیوں میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بھی جلوہ بار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ فرماتی ہے نہ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نہ کوئی غمگینی کے آثار تھے، نہ کوئی گھبراہٹ کے آثار تھے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے اپنی زبان پہ درود پاک تھا اور مدینے والے مصطفیٰ کی نعت لکھ رہے تھے۔ چنانچہ پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے جہاز کے کیپٹن کی جانب سے، اے حاجیوں ان قریب ہمارا جہاز بھور میں پھنس چکا ہے، لہٰذا اپنی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر لو تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو سکے۔ یہ اعلان نے تو اور حاجیوں کے ہوش اڑا دیے، مگر انہی کے درمیان میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ بار ہے، یہی نعت مصطفیٰ لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب نعت لکھتے ہیں اور جب ایسی مصیبت کے عالم میں، جب ایسی پریشانی کے عالم میں، جب ایسے گھبراہٹ کا ماحول دیکھا تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور جب یہ اعلان سنا جہاز پھنسنے والا ہے، بھور میں ڈوبنے والا ہے، تو اعلیٰ حضرت مدینے کی طرف رخ کرتے ہوئے سرکار کو یاد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ سرکار مدینہ کو یاد کرنا تھا کہ اچانک تھوڑی دیر کے بعد میں جہاز کا کیپٹن تیسرا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیسرا اعلان جہاز کا کیپٹن پھر کرتا ہے اور کہتا ہے حاجیوں خوشخبری ہو تمہارے لیے، الحمدللہ ہمارا جہاز سمندر کے بھور سے محفوظ ہو چکا ہے اور راستے پر چل پڑا ہے، اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے میرے بیٹے ذرا یہ تو بتا دے، جب جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا اپنے رب کو یاد کرو تو کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، کوئی اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا، کوئی اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہا تھا۔ اے احمد رضا مگر تمہارے چہرے پر ہم نے کوئی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے، تمہارے چہرے پر ہم نے کوئی گھبراہٹ نہ دیکھی۔ اب بریلی کے اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو اور اپنا ایمان و عقیدہ محفوظ کرو۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے والد محترمہ بات یہ ہے، معاملہ یہ
हदीस से पाक पड़ा है कि जब कोई बंदे मोमिन जहाज पर सवार होते हुए, कश्ती पर सवार होते हुए दुआ पढ़ ले और दुआएं सफर पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसको भी और उस जहाज को भी, सफर को भी, और सफर में उस सफर के अंदर, उस कश्ती के अंदर जितने लोग बैठे रहते हैं, अल्लाह ताला सभी की हिफाजत फरमाता है, सभी की निगहबानी फरमाता है। तो ऐ वालिद मोहतरमा, मेरा ईमान था, मैंने हदीस पढ़ा था कि जो दुआएं सफर पढ़ लेता है अल्लाह हादिसात से महफूज फरमा देता है, अल्लाह परेशानी से महफूज फरमा देता है। ऐ वालिद मोहतरमा, मेरा यकीन कामिल था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाज में सवार होने से पहले दुआएं सफर पढ़ लिया था, इसलिए मुझे मालूम है सब कुछ उलट पलट हो सकता है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। ये है आला हज़रत इमाम रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब सरकार को याद करते हैं तो यूं करते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए है, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए है। और फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए है, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महफिल में हम लोग शरीक हुए। आज का जलसा मदरसा दारुल उलूम नौमान रज़ा के अराकीन ज़िम्मेदारान की जानिब से ये बज़्म सजाई गई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मदरसे के अराकीन को और मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब अता फरमाए। स्टेज पर जो सैयदज़ादे बैठे हैं, इनके तोफ़ैल में अल्लाह ताला हमारे जलसे को कामयाब व कामरान अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे, मैं आपको बताता हुआ चलो, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान का माहौल क्या था, अरब का माहौल क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम किन हालात में दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हुजूर की तशरीफ आवारी से पहले किस तरह का माहौल था, वो बताता हुआ चलो, ताकि हमें आमद मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरकार की विलादत की खुशी मनाने की तौफीक रफीक मिल सके। आओ बताता हुआ चलो, तारीख उठा करके देखो, अरब का माहौल था, अरब की हिस्ट्री थी कि दुनिया अरब के वाले पानी की जिस तरह से हम पानी पीते हैं, पल पल में पानी पीते हैं, अरब वाले हुजूर की विलादत से पहले हुजूर के आने से पहले हुजूर की बिइज़्ज़त से पहले अरब वाले पानी जिस तरह हम और आप पीते हैं वैसे ही शराब पिया करते थे, लुकमे पर शराब पिया करते थे, हर खाने के एक लुकमे पर शराब का एक घुट पिया करते थे। शराब आम थी, जुआ आम था, सट्टा आम था, सूद का कारोबार आम था, और इतना ही नहीं बल्कि ज़िनाकारी आम थी। ज़िना के अड्डे सजाए नहीं जाते थे बल्कि उनके घरों में आबाद हुआ करते थे। हुजूर की तशरीफ आवर से पहले अरब का माहौल उठा करके देखो, किस कदर भयानक माहौल में हुजूर की जलवागरी हो रही है। ये देखो अरब का माहौल है, जिना जहां आम था, अगर जिना करने के लिए अगर अरब वालों को कोई खातून न मिला करती थी तो तारीख ये बताई जाती है कि वो अपनी सगी माओ के साथ जिना कर लिया करते थे, सगी बहनों के साथ जिना कर लिया करते थे। ऐसा खतरनाक माहौल था अरब का माहौल के अल्लाह अल्लाह कि वहां बेटी पैदा होना माज़ल्ला मनहूस समझा जाता था। बेटियां पैदा हुआ करती थी तो माँ बाप उसको मनहूस जानते हुए उसके गले पर हाथ अंगूठा रख करके दबा दिया करते थे उसका गला, और उसे गड़े के अंदर डाल दिया करते थे। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने पर फख्र महसूस किया करते थे। ये अरब की तारीख हमें बता रही है। इतना ही नहीं बल्कि बेवा औरतों के साथ में वो सुलूक किया जाता था कि बेवा औरतों को माज़ल्ला वो जुल्म तशद्दुद किया जाता था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख उठा करके देखो अरब की, अरब का माहौल ये था कि जब मेरे आका की विलादत से पहले बेवा औरतों के साथ सुलूक ये किया जाता था, उसके शौहर के इंतकाल के बाद में उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाता था, उसके माल और दौलत को अपना लिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि उस बेवा औरत को एक चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता था। वो चार दीवारी कोई बहुत बड़ा घर नहीं हुआ करता था, कोई बहुत बड़ा कमरा नहीं बल्कि छोटा सा कमरा होता जहां पर उस बेवा औरत को 6 माह या 1 साल तक की इद्दत गुजारना होती थी। और उस कमरे के अंदर न कोई दरवाजा होता, न कोई खिड़की होती, बल्कि एक छोटा सा रोशनदान होता जहां से उसके रिश्तेदार बाहर
दिया करते थे, जहां से उसके रिश्तेदार पानी अंदर डाल दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि चार दीवारी के अंदर वहीं पर पेशाब भी करना है, वहीं पर पाखाना भी करना है। अब बेवा औरत के ऊपर इतना जुल्म तशद्दुद, बहुत सारी औरतें तो सिस्टियां ले लेकर के दम तोड़ दिया करती थी, बदबू को बर्दाश्त ना करते हुए वही अपनी जान दे दिया करती थी। और अगर कोई खातून जिंदा बच भी जाती थी तो उसका माहौल ये होता था, ये सब गरीब औरतों के साथ होता था, मालदार औरतों को छोड़ दिया जाता था, ये सब गरीब औरतों के साथ में ये सुलूक होता था। अगर कोई औरत 6 माह या 1 साल के बाद जिंदा निकल भी आती थी तो उसके साथ कैसा दर्दनाक रवैया किया जाता था। तारीख उठा करके देखो, तारीख हमें ये बता रही है कि जब चार दीवारी तोड़ी जाती और उसके बाद जो खातून जिंदा बच निकल आती तो उसके साथ ये बुरा सुलूक किया जाता, उसके सर के बालों को निकाल दिया जाता, यानी हमारी भाषा के अंदर ये कह लीजिए कि उसका टकला बना दिया जाता, उसका वो गंजा कर दिया जाता। इतना ही नहीं बल्कि चेहरे पर कालिक लगा दी जाती, और इतना ही नहीं उसको गधे पर बैठा दिया जाता। एक आदमी ढोल बजाते हुए ऐलान करता, ऐ अरब वालों देखो देखो, ये फला खातून है जिसके शौहर का इंतकाल 6 माह कबल या 1 साल पहले हुआ था, आज इस मनहूस औरत की इद्दत पूरी हो रही है। और इतना ही नहीं, जब तारीख मैंने पढ़ा तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं बेवा औरतों के साथ कैसा सुलूक हो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि अरब के कुछ बदमाश बच्चों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में नोकीले पत्थरों को दे दिया जाता, वो औरत को गधे पर बैठा दिया जाता, वो औरत आगे आगे चलती, पीछे चलने वालों का हुजूम होता, उसी औरत के पीछे नौजवान बच्चों के हाथों में नोकीले पत्थर दे दिए जाते। वो नौजवान निशाना लगा करके उस खातून के सर पर निशाना लगा करके मारते, उस औरत को पत्थर मारते, यहाँ तक कि उस औरत के सर से खून निकलना शुरू हो जाता, खून के फव्वारे निकल जाते, यहाँ तक कि ये दर्दनाक माहौल देख करके पूरे शहर में घुमाया जाता। इतना ही नहीं बल्कि उसका मामला ये होता कि उस औरत से फिर कहा जाता, ऐ औरत खबरदार, अब तुझे शादी में आने के लिए कोई अधिकार नहीं है, शादी ब्याह में आने का कोई हक नहीं है, खुशी के मौके पर तुझे बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, बल्कि चार दीवारी के अंदर ही रहना है, कैद ही में रहना है। सुबह सवेरे निकलने का अधिकार नहीं है, बल्कि दोपहर के वक्त निकलना, ताकि कोई काम के लिए निकल रहा हो, काम के लिए जा रहा हो तो कोई तेरा मनहूस चेहरा ना देख सके। ऐसे भयानक माहौल के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे दर्दनाक माहौल में जब औरतों के साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा था, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जब औरतों को पैर की ठोकर समझी जा रही थी, जब औरतों को पैर की जूती समझी जा रही थी, ऐसे भयानक माहौल में मेरे परवरदिगार आलम ने अपने बंदों पर रहमो करम फरमाया, और उन्हीं बंदों में उसी अरब के जमीन पर अल्लाह ने अपने हबीब को मक्का शहर में मबूस फरमाया, यानी पैदा फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जवानी की मंजिल तय की, और जब आका अलैहिस्सलाम की 25 साल उम्र मुबारक हुई, और जब मेरे आका ने, तुम्हारे आका ने शादी का इरादा फरमाया, निकाह का इरादा फरमाया, तो अरब वालों की तारीख मेरे आका जानते थे, अरब वालों की हिस्ट्री सरकार जानते थे, ये औरतों के साथ कैसे सुलूक करते हैं, ये बेवाओं के साथ कैसा सुलूक करते हैं, गरीब औरतों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात पर भोगने वालों, ये देखो आज मेरे आका के निकाह के हवाले से बहुत सारे एतराज करते हैं। आका ने 11 निकाह फरमाया, आका ने इनसे शादी फरमाई, आका ने उनसे शादी फरमाई। आओ देखो मेरे आका की तारीख उठा करके देखो, जब मेरे आका ने ये माहौल देखा कि बेवाओं के साथ में ये सुलूक किया जाता है, बेवाओं को मनहूस समझा जाता है। 25 साल की उम्र में जब मेरे मुस्तफा ने निकाह करने का इरादा किया तो किसी कुंवारी खातून से नहीं, बल्कि 40 साल खातून, हमारी तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया, और पूरे अरब वालों को बता दिया, ऐ अरब वालों देखो देखो, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों देखो देखो, बेवा औरतें मनहूस नहीं हुआ करती है, बल्कि बेवा औरतों से निकाह करना तुम्हारे मुस्तफा की सुन्नत है। गोया कि बेवा औरतों को जो जिल्लत का मकाम लोगों ने दिया था, उस जिल्लत के मकाम को मेरे मुस्तफा ने दूर फरमा दिया, औरतों का एक इज्जत का मकाम दे दिया। यहाँ तक कि ऐलान नबूवत के बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जलवागर है, साहबे किराम को औरतों के मकाम बता रहे हैं, बच्चियों से प्यार करने का तरीका बता रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे जानी सारो, अगर किसी के घर में अल्लाह ने 4 बेटियां पैदा फरमाई तो वो 4 बेटियों के
वालिदैन अगर अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दे, अगर अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दे और दीनदार घराने में शादी करा दे, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं 4 बेटियां होने की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन 4 बच्चियों की वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देगा। जोर से बोलो। किसी ने पूछा आका अगर किसी को 3 ही बेटियां हो तो मेरी मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया 3 बेटियां हो तो भी अगर उनकी अच्छी परवरिश करे, दीन की तालीम दिलाए, दीनदार घराने में शादी करा दे, तो अल्लाह ताला 3 बच्चियों के वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। आजकल हमारे घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुंह टेढ़ा वाकड़ा बेण बाण ना जाने क्या क्या होता है कि बेटी हो गई, बेटी हो गई। मेरे प्यारे, बेटा होता है तो पेड़े बांटते हैं और बेटी होती है तो चेहरे पर 12 बजते। मेरे नाका ने फरमाया ना ना ना, ये बेटी तो अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा है, बेटी तो परवरदिगार आलम ने रहमत बना करके तुम्हारे हवाले फरमाया है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर कोई शख्स अर्ज करता है आका अगर किसी को 4 नहीं 3 नहीं 2, हुजूर ने फरमाया यही हुक्म है। किसी ने अर्ज किया आका अगर किसी को 1 बेटी, तो मेरे आका ने फरमाया कि सुनो सुनो, अगर 1 बेटी हो कोई बात नहीं, दीन की तालीम दिलाए, दीनदार घराने में शादी कराए, परवरदिगार आलम की रहमत से उम्मीद है अल्लाह ताला उस 1 बच्ची के वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। चुनांचे पर्दे की आड़ में से हमारी तुम्हारी सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िदाका अबी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका अलैहिस्सलाम अगर किसी को 4 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 1 नहीं बल्कि औलाद ही ना हो, वो बे औलाद हो, उसके लिए आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं। अब मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा का फरमान सुनो। ऐ बुरहानपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, मुस्तफा का फरमान सुन के मचल जाओ और सरकार का फरमान सुन करके अपनी ज़बानों पर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा सुन ले, जिसकी 4 बेटियां हो तो बेटियों की वजह से जन्नत में जाएगा, 3 बेटियां हो 2 बेटियां हो 1 बेटी हो, बेटियों की वजह से उसके वालिदैन बख्शे जाएंगे। मगर है आयशा जिसको कोई औलाद नहीं होगी, जो बेसहारा होगा, जो बेआसरा होगा, क़यामत के दिन ऐसा बेसहारा और ऐसा बेआसरा जिसका कोई सहारा नहीं होगा, मोहम्मद अरबी उसका सहारा बन करके उसे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे, उसे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तारे बहा दिए हैं। जब मेरे आका ये बात बयान फरमा रहे थे, एक शख्स खड़ा हुआ, देहात का रहने वाला था, आंखों में आंसू लाए और सखी फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कह करके ज़ारो कतार रोने लगा, इस कदर ज़ारो कतार रोने लगा। आका फरमाते मेरे प्यारे क्या हुआ? कहा हुजूर आका क्या मेरी क़यामत के दिन बख्शिश होगी? क्या मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा? मेरे आका फरमाते हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे यकीनन गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, यकीनन तेरे गुनाहों की खताओं को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। वो शख्स अर्ज़ करता है आका मेरा गुनाह कोई मामूली गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आका बताते हुए भी डर महसूस होता है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यकीनन परवरदिगार आलम की रहमत बहुत बड़ी है, यकीनन परवरदिगार आलम तुझे माफ फरमा देगा, मगर ये तो बता तेरी खता क्या है। अब वो शख्स अर्ज करता है आका क्या बताओ, आप आए तो हमें बेटियों से मोहब्बत करने का तरीका आ गया है, आका आप आए तो हमें बेटी क्या चीज है मालूम हुआ, औरत क्या चीज है उसका मकाम हमें मालूम हुआ। आका मेरी खता यह है जब मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा था, जब मैं जमाने जाहिलियत में जी रहा था, जब मैं हालत कुफ्र में जी रहा था, तो आका आप जानते हैं इस अरब की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा रखना मनहूस समझा जाता था। यहाँ तक कि अगर माशरे के अंदर अगर किसी की बेटियां होती तो वो माशरे के अंदर समाज के अंदर सर उठा करके नहीं बल्कि सर झुका करके चला करता था। इसी रिवायत को रीत को अपनाने के लिए कि मैं सर झुका करके ना चलो, सर उठा करके चलो। इसी बात पर मैंने अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया हो तो आका एक बेटी नहीं, आका 2
बेटियां नहीं, आका 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, आका मुसलसल मैंने 7 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया हो। आका मगर 7वीं बच्ची का अजीब मामला था। क्या मामला था आका? मामला ये था कि जब मेरी बीवी हालत हमल से थी और विलादत का जमाना करीब था मेरे बच्चे की, तो मैं शिकार पर जाने का इरादा किया। मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, 15 रोज के बाद आऊंगा। इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारे यहाँ पर हमारे घर पर बच्चे की विलादत होने वाली है। अगर लड़का है तो कोई बात नहीं, और है मेरी शरीक हयात, अगर लड़की हुई तो जिंदा अपने हाथों से दफन कर देना। ये कहा और मैं सफर पर रवाना हो गया। मेरी आका पता नहीं, मैं 15 रोज के बाद में जब मैं घर लौटा, मैंने पूछा मेरी शरीक हयात मामला क्या है? तो मेरी शरीक हयात ने कहा, मेरे सरताज 7वीं भी लड़का नहीं बल्कि 7वीं भी बच्ची पैदा हुई थी, मगर मेरे सरताज वो पहले ही से मरी हुई पैदा हुई थी, पहले ही से मुर्दा पैदा हुई थी, लिहाजा मैंने उसे दफन कर दिया। वो शख्स कहता है, आका मैंने सुना कि 7वीं बच्ची मरी हुई पैदा हुई, मैंने खुशी का घुट पिया और अपने कामों में लग गया। मगर आका मेरे से बीवी ने मुझसे झूठ कहा था, बल्कि वो 7वीं बेटी तो पैदा हुई थी मगर मरी हुई नहीं, जिंदा पैदा हुई थी। और वो उस मेरी खातून ने मुझसे छुपा करके अपनी बेटी को जिंदा रखा हुआ था अपने वालिदैन के यहाँ। जब मौका मिलता, फुर्सत मिलती, मेरी बीवी अपने वालिदैन के घर चली जाती और दूध पिला करके आ जाया करती। यही दिन चला करते थे, यही रातें गुजरा करती थी, यहाँ तक कि वो बच्ची तकरीबन 2 साल और कुछ माह की हुई। मैंने एक दिन अपनी शरीक हयात से कहा, अरे मेरी शरीक हयात में 15 रोज के लिए शिकार पे जाना चाहता हूँ। अब जैसे मैं शिकार का सफर का इरादा किया, थोड़ा ही रास्ता तय किया, उधर मेरी बीवी अपने वालिदैन के घर जाकर के उस बच्ची को अपने घर ले आई। और जब से मैं अपने घर से थोड़ा दूर जाकर के वक्त गुजारा ही था कि अचानक मुझे घबराहट से पैदा हुई, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे ख्याल आया कि शिकार पे नहीं जाना चाहिए, अपने घर लौटना चाहिए। जैसे ही आका मैं घर आया तो मैं घर पर आने के बाद में मैंने क्या देखा, मेरी बीवी की गोद में एक बड़ी हसीन और जमील साला 2 साल बच्ची गोद में लेटी हुई है और मेरी बीवी उसको बड़ी ही प्यार कर रही है, उसके गाल को चूम रही है। जैसे ये मंजर मैंने देखा तो मेरी बीवी से सख्त अंदाज में कहा, अरे मेरी शरीक हयात ये किसकी बच्ची है? कहा वाला पड़ोसी। जब मैंने और ज्यादा सख्त ताकीद की और यहाँ से तलवार निकाला और उसके गर्दन पर रखा तो मेरी बीवी कहती है, अरे मेरे सरताज है, मेरे शौहर, ये किसी और की बच्ची नहीं बल्कि ये तुम्हारी हमारी अपनी बेटी है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा बच्ची पैदा हुई है। चुनांचे इस बच्ची की चेहरे को देखो, उसके रुसाल को देखो, उसके हुस्न जमाल को देखो, इसकी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बातें तो सुनो। चुनांचे वो शख्स कहता है, आका कैसी मैंने सुना कि मेरी बेटी है, मेरे पैर की जमीन खिसक गई और मैंने इरादा किया इस बच्ची को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। चुनांचे मैंने कुदाल लिया, मैंने टोकरी लिया और अपनी बेटी को साथ में लेना चाहा। मेरी बीवी बार बार मना करती रही और कहती रही, ऐ मेरे शौहर इस बच्ची को ना मारो, इस बेटी को ना मारो, अभी तक कि तुम मारते रहे मैं कुछ नहीं कहती रही, मगर 2 साल तक के मैंने इसे दूध पिलाया है। ऐ मेरे सरदार इसे ना मारो, मगर मैं उसे ना उसकी बातों को ना सुनता रहा। चुनांचे शहर से बाहर आकर के मैंने गड़ा खोदा और गड़ा खोदना शुरू किया, बच्ची को धूप में बैठा दिया। चुनांचे गड़ा खोदता रहा, अब गर्द गुबार उड़ती रही, मेरे जिस्म पर गर्द गुबार लगती रही, मेरे बदन पर मट्टी उड़ उड़ करके मेरे कपड़ों को भी खराब करने लगी। मेरी बच्ची जो कि 2 साल की थी नन्हे कदमों से आकर के मेरे करीब में आई, मेरे कपड़ों पर जो धूल देखी अपने नन्हे हाथों से झाड़ना शुरू किया, अपने नन्हे हाथों से उसे हटाना चाहा। मैंने ये बेटी का प्यार देखा, आंखों में आंसू आ गए, सोच नहीं रहा था इसे जिंदा रखो या मार दो, मगर अरब का रिवाज था अगर बेटी जिंदा रखी तो सर झुका करके चलना होगा। और मैं अरब के माहौल में सर झुका करके नहीं, सर उठा करके जीना चाहता था, इसलिए फिर मैंने और गड़ा खोदना शुरू किया। आखिरकार मैंने पानी का भी मशकिज़ा लाया हुआ था, पानी का प्याला रखा हुआ था। मैंने मेरे जिस्म पर धूप की गर्मी की वजह से जब पसीना मेरे बदन से टपकने लगा, मेरी नन्ही 2 साल बच्ची पानी का प्याला लेकर के नन्हे नन्हे हाथों से लेकर के आ रही है। जबान से तो कुछ नहीं कह रही थी मगर इशारों ही इशारों में कह रही थी, अरे बाबा जान आप काम करते करते थक गए हैं, अब्बा हुजूर आप काम करते करते आपके
जिस्म पर पसीना आ गया है। बाबा जान ये ले लीजिए, पानी का प्याला पी लीजिए। बाबा जान ये पानी का प्याला नोश कर लीजिए। मैंने उसके हाथों से पानी पिया और पानी पी करके प्याला भी रखा, बच्ची को भी रखा, गड़ा खोदता रहा यहाँ तक कि जब गड़ा खोदा और खोदने के बाद मैंने चाहा इस बच्ची को उठा करके गड़े में डाल दो। मैंने उस बच्ची को उठाना चाहा तो उस बच्ची को यूं महसूस हुआ कि मेरा बाप गोया कि मुझे सीने से लगाना चाहता है। उसने अपनी बाहों को खोल दिया और गोया कि मेरे सीने से चिमट गई। बेटी का ये प्यार, बेटी की ये उल्फत, बेटी की ये मोहब्बत जब मैं देखा तो मैं पारा पारा हो गया। समझ नहीं रहा था कि बेटी को जिंदा रखो या छोड़ दो, मगर आपके दस्तूर के मुताबिक मैं सर उठा करके जीना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को बड़ी ही बेकदरी से सीने से जुदा किया और जुदा करने के बाद में उसी गड़े के अंदर अपनी बेटी को डाला। अब जैसी बच्ची नीचे गिरी है उसने नन्हे नन्हे हाथों को उठा करके गोया के आसमान की तरफ इल्तिजा की और उससे पहले मेरी तरफ फरियाद की, अरे बाबा जान तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे अब्बा जान आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हो? बाबा जान मैं बेटी बन करके आई है तो इसमें मेरा क्या लेना देना है? ये तो परवरदिगार आलम ने मेरी किस्मत में बेटी बना करके, तुम्हारी किस्मत में बेटी बना करके भेजना था तो मैं बेटी बन करके आई हुआ। बाबा जान इसमें मेरा क्या दोष है? अरे बाबा जान मुझे ना मारो। मगर जब आपने गड़े में डाल दिया तो गोया कि वो शख्स कहता है फिर मैंने आका, फिर मैंने क्या देखा कि उस बच्ची ने गोया के अपने हाथों को, नन्हे नन्हे हाथों को परवरदिगार आलम की बारगाह में उठा दिया और गोया कि वो बच्ची दुआ मांग रही थी, तो अर्ज कर रही थी, ऐ खालिक व मालिक मौला, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बे काबा, तेरी बारगाह में तेरी बंदी अरीज़ा पेश करती है, कब तक के बेटियों को यूं ही जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ परवरदिगार आलम, कोई तेरा ऐसा महबूब बंदा, कोई तेरा ऐसा महबूब बंदा दुनिया में मबूस फरमा दे ताकि दुनिया वालों को बता सके, कि दुनिया वालों को मालूम करा सके, दुनिया वालों को पता दे सके कि बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता है, बल्कि बेटियों को तो प्यार करने के लिए पैदा किया जाता है, प्यार और मोहब्बत करने के लिए दुनिया में भेजा जाता है। लिहाजा वो दुआ मांगती रही, मैं पत्थर डालता रहा, मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि उस बच्ची की आवाज मेरी कानों में गूंजती रही। मैं पत्थर डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, मगर आका मैंने तो उसे जिंदा दफन कर दिया। मगर उसके बाद में उसकी जो दुआ मेरे कानों में गूंज रही थी, आका उसी दिन से मैं कभी ना सोया। उस दिन के बाद में मुझे कभी चैन की नींद ना आई। मैं सोचता रहा ये कैसा मुआशरा है कि जो बेटियों को जिंदा दफन करने पर फख्र महसूस करता है। मेरी नींद उड़ चुकी थी, बेटियों का जो प्यार था मैं बेचैन बेकरार था। अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी कि मक्का की जमीन पर अल्लाह का आखिरी नबी पैदा हो गया है जो दुनिया वालों को ये बताता है, ऐ दुनिया वालों, बेटियां मारने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत करने के लिए भेजी जाती है। जब ये जुमला मेरे कान में गूंजा मैंने सारे कामों को छोड़ा और आपकी बारगाह में आ गया। आका आपका कलमा पढ़ करके मैं इस्लाम में दाखिल हो गया हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो बेटियों से प्यार करने का जो तरीका बताया है, आका आपके आने की बरकत से हमें बेटियों से मोहब्बत का सलीका आ गया है। आका क्या मेरी खता माफ हो सकती है? तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे, तूने जो कुछ भी ज़माने कुफ्र के अंदर जो कुछ भी काम किया था, कलमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको बताता हूँ बच्चों लोग, शायर इसीलिए तो कहता है जहाँ तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था। जहाँ तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आओ मैं आपको सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वालिद मोहतरमा की बारगाह में ले चलो। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में ले चलो। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जिस दिन से मेरे आका मेरे हमल में, मेरे शिकम में जलवागर हुए, उस रात से हर रात में एक एक पैगंबर की ख्वाब में ज़ियारत किया करती थी। एक रोज मैंने ख्वाब देखा
کہ بڑے حسین و جمیل اونچے قد و قامت والے بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے. میں نے پوچھا سلام کیا, ان بزرگوں نے سلام کا جواب دیا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی میں نے پوچھا اے بزرگوار آپ کون ہیں؟ تو بزرگ مسکرائے فرمایا اے آمنہ میں تمہارا باپ ہوں. حضرت بی بی آمنہ عرض کرتی ہے بابا جان میرے والد تو ایسے نہیں تھے, بزرگوار میرے بابا جان ایسے نہیں تھے, میرے باپ بہت چھوٹے قد کے تھے, آپ اونچے قد و قامت کے, آپ کا چہرہ دیکھ رہی تو خدا یاد آ رہا ہے, آپ ہے کون؟ وہ بزرگ مسکرایا فرمایا اے آمنہ نہ گھبرا, میں تیرے باپ کا باپ کا باپ کا باپ آدم پیغمبر ہوں. زور سے بولو آدم پیغمبر ہو. کہا ہے آمنہ میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں, میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں, تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آنے والا ہے بلکہ تیری گود میں سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں, طاہر یاسین آنے والے ہیں, سراج منیر آنے والے ہیں, اللہ کے حبیب آنے والے ہیں, نبیوں کے امام آنے والے ہیں, نبیوں کے سلطان آنے والے ہیں, نبیوں کے تاجدار آنے والے ہیں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ روزانہ ایک ایک خواب میں, ایک ایک رات ایک ایک خواب میں ایک ایک پیغمبر کی زیارت کرتی. آخر کار وہ ساتھ سعید آئی کہ جس گھڑی میں حضور کی ولادت مبارکہ ہونے والی تھی. حضرت بی بی آمنہ فرماتی میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں اس وقت تو کوئی نہیں تھا, نہ کوئی دائی تھی نہ کوئی مائی تھی. اس رات میں اچانک حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے گھر کی چھت شق ہوتی ہے اور میرے گھر میں 4 مقدس خواتین میرے گھر میں جلوگر ہوتی ہے کہ جن کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. میں نے عجیب دیکھا کہ یہ معاملہ کہ عجیب عورتیں جن کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا, بڑی حسین و جمیل, بڑی ہی خوبصورت. ایک خاتون بول اٹھی اے آمنہ تجھے یہ عورتیں بشارت دینے آئے ہیں, خوشخبری دینے آئے ہیں. اے آمنہ سن لے, تیری گود میں کوئی عام شہزادہ نہیں بلکہ اللہ کے حبیب تشریف لانے والے ہیں. یہ خواتین تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے. اے بی بی آمنہ سنو, یہ خاتون جو دیکھ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں, ہم سب کی ماں حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. دوسری خاتون جو دیکھ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں, یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تیسری خاتون جو دیکھ رہی ہے یہ حضرت ہاجرہ ہے. چوتھی خاتون جو دیکھ رہی ہے یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بہرحال ہر خاتون نے حضرت بی بی آمنہ کو مبارکباد پیش کی. اس کے بعد یہ خواتین بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے رات کا وقت قریب تھا, صبح صادق کا وقت قریب تھا. حضور کی ولادت پاک جو ہو رہی ہے کون سے وقت میں ہو رہی ہے؟ ان علماء کرام سے پوچھو. صبح صادق کے وقت حضور کی آمد ہو رہی ہے. گویا کہ صبح صادق کسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں رات بھی موجود ہو اور دین بھی موجود ہو. گویا کہ حضور کی ولادت سے پہلے رات دعا کرتی ہوگی اے پروردگار عالم تیرے آخری نبی کو میرے اندر پہ دنیا میں مبعوث فرمانا تاکہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ رات کے اندھیرے میں حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور گویا کہ دین بھی دعا مانگ رہا ہوگا اے پاک پروردگار عالم دین کے اجالے میں تیرے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمانا تاکہ میں سر اٹھا کر کے کہہ سکوں اے رات سن لے, میرا ایک وقار ہے کہ دین کے اجالے میں آخری نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں. چنانچہ میرے رب نے رات کی بھی دعا قبول فرمائی, دین کی بھی دعا قبول فرمائی. ایسا وقت صبح صادق کا کہ دین بھی موجود ہے رات بھی موجود ہے. گویا کہ اللہ دین سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے, رات سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے اے رات سن لے, اے رات جاتے جاتے روح مصطفیٰ کی زیارت کر لے, اے دین نکلتے نکلتے آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے, چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے حسین وقت میں حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے حضور کی ابھی ولادت پاک نہیں ہوئی ہے, اچانک میرے شکم سے, اچانک میرے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا, ایک ایسا نور نکلا. وہ نور نکلتا گیا, پھیلتا گیا, بڑھتا گیا, یہاں تک کہ اسی نور کی روشنی میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا. یہاں تک کہ جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, 70,000 فرشتوں کا نورانی قافلہ لے کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اور خالی ہاتھ نہیں آ رہے, 3 جھنڈے لے کر کے آ رہے ہیں.
एक रिवायत में है हजरत बीबी आमिना फरमाती है उसी नूर की रोशनी में मैंने देखा कि जिब्रील अमीन तनहा नहीं 70,000 फरिश्तों के साथ खाली हाथ नहीं, हाथों में 3 झंडे हैं। एक झंडा भी एक रिवायत के एतबार से हजरत बीबी आमिना फरमाती मैंने ये देखा कि सबसे पहले एक झंडा जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पहला झंडा बैतुल मुकद्दस की दीवार पे नस्ब फरमाया। दूसरा झंडा खाने काबा की दीवार पे नस्ब फरमाया। जोर से बोलो, कुछ समझो। तीसरा झंडा हजरत बीबी आमिना फरमाती उस घर में जिस घर में मैं रहती थी, जिस घर में हुजूर की विलादत पाक होने वाली थी, उसी घर की छत पर हजरत जिब्रील अमीन ने तीसरा झंडा लगाया। गोया के झंडे लगाना, झंडियां लगाना बिदअत नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि आइन जिब्रील अमीन की सुन्नत मुबारक है। आजकल बहुत सारे लोग हमें ताना देते हैं कि झंडे क्यों लगाते हैं, झंडियां क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है? अरे नादान, देख हदीस पढ़, दिल में इश्क मुस्तफा है तो समझ में आ जाएगी। दिल में अगर सरकार की मोहब्बत है तो सीना रोशन हो जाएगा। ये देख, हमारी माँ झूठ बोल सकती है, आपकी माँ झूठ बोल सकती है, मगर नबी कौनैन की वालिदा कभी झूठ नहीं बोल सकती है। ये हमारा ईमान अकीदा है। हजरत बीबी आमिना फरमाती 3 झंडे, पहला झंडा खाने काबा की दीवार पे, दूसरा झंडा बैतुल मुकद्दस की दीवार पे, तीसरा झंडा उसी घर की छत पर जब सरकार की विलादत तैयबा होने वाली थी। गोया के झंडे लगाना, इसी हदीस की रोशनी में समझ में आया कि झंडे लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है, नहीं बल्कि हुक्म खुदा है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा तुम्हारा सबका ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता हिल सकता है? जोर से बोलो। तब मैं पूछना चाहता हूँ कि जिब्रील अमीन ने अपनी मर्जी से 3 झंडे लगाए होंगे? जोर से बोलो ना। नहीं ना, अल्लाह के हुक्म से जब पत्ता नहीं हिल सकता तो जिब्रील में क्या ताकत है, जिब्रील में क्या मजाल है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके? तो गोया के जिस रात हबीबे दो जहां की विलादत पाक होने वाली थी, तो गोया के मेरे रब ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत में ना बैठो बल्कि जाओ जन्नत से 3 झंडे ले लो, और 3 झंडे, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की दीवार पे, दूसरा झंडा खाने काबा की दीवार पे, और तीसरा झंडा मेरे महबूब की जब विलादत होने वाली है उस घर की छत पर लगा दो। ऐ जिब्रील तुम झंडे लगा दो ताकि मेरे बंदों को झंडे लगाने का तरीका आ जाए, ताकि मेरे बंदों को झंडा लगाने का सबूत मिल जाए। अच्छा, एक बात ये हमसे पूछते, झंडे लगाने का सबूत मिल गया, जुलूस निकालने का सबूत कहां से है? इस जुलूस में लोग इतने सारे निकलते जमा होके कहां से? तो उसका भी सबूत इसी हदीस है कि हजरत बीबी आमिना फरमाती है मैंने देखा कि जिब्रील अमीन जो झंडे लेकर के जमीन पर आए थे तो तन्हा नहीं, अकेले नहीं, बल्कि 70,000 फरिश्तों का काफिला लेकर के आए थे। गोया के मेरे रब ने फरमाया होगा, ऐ जिब्रील झंडे ले जाओ मगर अकेले ना जाना, बल्कि 70,000 फरिश्तों का नूरानी काफिला लेकर जाना, ताकि मेरे बंदों को जुलूस निकालने का तरीका आ जाए, ताकि मेरे बंदों को मसलके आला हजरत जश्न आमद रसूल नारे तकबीर, मेरे प्यारे जुलूस निकालने का तरीका आ जाए। मगर यहीं पर एक बात कि जुलूस के हवाले से बताता बच्चों लोग, आज जुलूस जो निकाला जाता है, आप लोग जुलूस में शरीक होते हैं कि नहीं होते? होना चाहिए कि जिब्रील अमीन की सुन्नत मुबारक और ऐन हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक है। बहरहाल मगर कुछ जाहिलों की वजह से, कुछ अनपढ़ नौजवानों की वजह से, कुछ लोग इन उलमाए किराम को कुछ हमें ताना तशनी करते हुए नजर आते कि ये देखो जुलूस के अंदर ये डीजे वगैरह बजाए जाते हैं और किस तरह की आवाज़ और आवारा गर्दी की जाती है। कहाँ तक के दुरुस्त? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, जुलूस के अंदर क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जुलूस में डीजे किसी आलिम दीन ने लगाया? क्या कारी अब्दुल रशीद साहब ने लगाया? क्या सैयद अहमद अशरफ साहब ने लगाए? क्या जनाब आले रसूल मुस्तफ़ा साहब ने लगाए? कि ये हमारे उलमाए किराम
किराम ने डीजे लगाए, क्या इन उलमाए किराम ने फटाके फोड़े? नहीं, हरगिज भी नहीं, बल्कि ये उलमाए किराम तो हम तमाम लोगों को दावत देते हुए कहते हैं, ऐ लोगों डीजे से बाज आ जाओ, ऐ लोगों ऐसी आवाज ना निकालना, ऐसा शोर गुल ना करना जिससे बिरादरान वतन को भी तकलीफ हो जाए। कुछ हमारे नौजवान होते जो बदमाशी करते हैं, कहते इनसे भी बड़ा नारा लगाते तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये सबसे अच्छे नारे हैं, ये नारे लगाना छोड़ देते और कहते इनसे भी पढ़वाएंगे उनसे भी पढ़वाएंगे। मेरे प्यारे, तू तो पहले पढ़ ले, तुझे भी कलमा के अल्फाज तलफ़ुज़ सही याद है या नहीं याद है? पहले अपने गिरेबान में तो झांक करके देख ले, क्यों तू चेहरे से दाढ़ियां छीलता है? तू माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह चरस, गांजा, अफयून, न जाने ड्रग्स, एमडी नशे, न जाने कैसे कैसे नशा, भंग, चरस, गांजा पीता है, खाता है, इनके नशे करता है, और तू कहता है इनसे भी पढ़वाएंगे उनसे भी पढ़वाएंगे। मेरे प्यारे, अरे तेरे जैसों से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा रब पढ़वाने पर आता है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने प्यारे महबूब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को दुनिया में भेज देता है। वो मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं तो एक दो को नहीं बल्कि मुकम्मल 94 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करवाते हैं। दाढ़ियां काटता है मेरे प्यारे, मुंह में गुटखा रखा हुआ है मेरे प्यारे, और इस तरह से डीजे हरगिज ना लगाओ। ये हमारा फैशन नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। वल्लाहि अज़ीम, इन हमारे उलमा को बदनाम न करे। हमारे उलमाए किराम बारहा समझाते हैं, अरे डीजे पर ऐसी नात दी जिसकी झंकार से अगर किसी की कमर लचकती है, हिलती है, तो ऐसी नात भी सुनना हराम है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, झंकार के साथ, ढोल के साथ अगर कोई ऐसी भी आओ तो उसे सुनना भी हराम है। जाएगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा काम होता होगा। ये कुछ अन्य नौजवान होते हैं जो इल्म से वाकफियत नहीं रखते हैं, ये ऐसे नौजवान होते हैं जो शादियों के मौके पर भी नाचा करते डीजे लगा करके। इन्हें शरीयत से क्या लेना देना? मगर मेरे प्यारे, हम ना समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? ये हमारे उलमाए किराम नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? अरे ये 12 रोजा जलसे इसीलिए इन उलमाए किराम की सरपरस्ती में सजाए जाते हैं ताकि हमारे नौजवान को पता चल सके शरीयत मुस्तफा क्या है, तरीके मुस्तफा क्या है। आका की मिलाद मनाना है तो मनाओ, बिल्कुल। जुलूस निकालना है, बिल्कुल निकाले। अहले सुन्नत वल जमात के नसीब में आया है, काम करे। अल्लाह उस दिन सफेद लिबास हमारे बदन पर हो, सफेद अमामा या कोई भी रंग का अमामा हमारे सरों पर हो, हमारे सर पर टोपियां हो, हम गुस्ल किए हुए हो, हम इत्र लगाए हुए हो, हम नूर निकत में डूबे हुए अपने सर को झुका करके उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शादी से पहले पहले उठ करके अपने मोहल्ले की मस्जिद में या अपने घरों में बैठ करके दरूद की महफिल सजाए, फजर की नमाज अदा फरमाए, और उसके बाद जब भी जुलूस निकलता है सुबह के वक्त या दोपहर सवेरे 9 बजे निकलता है, उस जुलूस में शरीक जरूर है। जो अपने लबों पर गुटखा मुंह में ना रखे बल्कि लबों पर दुरूद पाक की लड़ियां सजा करके और फिर इस अच्छे अंदाज में सर को झुका करके कि अगर हमारे दाएं बाएं कोई भी खातून खड़ी हो तो हमारी बदमाश आके उनका नजारा न कर सके, बल्कि हमारी निगाहें, बल्कि खवातीन से भी मैंने कहना चाहता हूँ, अगर मेरी माँ बहन सुन रही होगी, खातून को भी कोई हक नहीं है कि वो इस जुलूस को देखने के लिए आए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारी माँ बहने पर्दे पे रह करके अपने नबी का मिलाद मनाए। सिर्फ जुलूस में जाना मिलाद नहीं है, सिर्फ ये जलसे जुलूस कर लेने का नाम मिलाद मुस्तफा नहीं है, बल्कि मिलाद मुस्तफा नाम वो है कि अपने नौजवानों को, अपनी औलादों को, अपनी कौम के बच्चों को, बच्चियों को दीन के रास्ते पर चला देना, कोई सीखना सिखा देना, ये भी मिलाद मुस्तफा है। गरीब की मदद कर देना, ये भी मिलाद मुस्तफा है। किसी आले रसूल के कदमों को बोसा ले लेना, इनकी इज्जत कर लेना, इनके हाथों को चूम लेना, ये भी मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि ये वो औलादे हैं जो प्यारे मुस्तफा की औलाद है। अरे जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब मेरे प्यारे, हम जुलूस में शिरकत करेंगे तो सफेद लिबास पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? इंशाअल्लाह। ज़बान पे दुरूद पाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह। लिल्लाह मेरे प्यारे, गुटखा छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो,
मैं यहाँ की बात तो नहीं मगर दीगर इलाकों में जाना होता है। हमारे 18-18 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे के ड्रग्स, एमडी नशा, और एक मार्केट में कुत्ता गोली, नाम ही उसका कुत्ता गोली है। मैंने तहकीक किया है किसका नाम, तो किसने तो नहीं बताया, पर मेरे अंदाज से कुत्ता गोली इसीलिए रखा गया होगा ताकि खाने के बाद जिस तरह कुत्ता सड़क पर पड़ा रहता है, ये भी खा करके नशे की हालत में कोई सड़क पर, कोई गटर की नाली पर पड़ा होता होगा। मेरे प्यारे मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, आओ आओ हमारे नौजवानों को इन नशा आवर चीजों से बचाए। हमारे नौजवान नशे की गोलियां इस्तेमाल करके कैसे कैसे ड्रग्स, एमडी नशे, ये एमडी नशा है क्या, ये थोड़ा सा मिलता है, उसको खाने के बाद में आदमी ऐसा बेहोश हो जाता है, ऐसा अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है कि अगर कोई इसे नशे से रोकने का इरादा करे, यहाँ तक कि अगर इसको नशा ना मिले, वो एमडी नशा, तो अपनी माँ से मांगता है, तो माँ ना दे तो माँ का खून कर देता है, अगर बाप ना दे बाप को कत्ल कर देता है। उठा करके देखो ऐसे अखबारात जो भरी हुई पड़ी हुई दास्तानें मिलेगी। अरे कितने ऐसे लोग हमारे पास में आकर के रोना रोते कि बहन की शादी के लिए लाखों रुपया रखा हुआ था, 1-2 लाख रुपया रखा हुआ था, माँ बाप ने संभाल करके ये बेटा नशा न मिलने की वजह से अपने ही घरों में चोरी करके, अपने ही घरों में डाका डाल करके हजारों का रुपया उनका नशा खा करके और फिर दवाखाने के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, हमारा नौजवान किसके साथ उठ रहा है, हमारे नौजवान की दोस्ती कैसी है। आज जरूरत इस बात की है यहाँ से इस स्टेज से पैगाम लेकर के जाए, हम खुद नमाजी बने, अपने बच्चों को नमाजी बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब अबुल हसन साहब, इनके नजमुल हसन साहब माशाल्लाह, इनके ये दारुल उलूम नौमान रजा इनके सरपरस्ती में चलता है। बहरहाल उस दारुल उलूम में जाना हुआ, बच्चों को देखा जो बच्चे हाफिज कारी वगैरह बन रहे थे, माशाल्लाह मुलाकात इन उलमाए किराम से वहां पर किया तो दिल बाग बाग हो गया। मदरसे की जानकारी ली और मदरसे के बारे में मालूमात ली, दिल खुश हो गया। ऐ मेरे प्यारे, दारुल उलूम नौमान रजा जो आपके इलाके का दारुल उलूम है, जो आपके मोहल्ले का मदरसा है, इस दारुल उलूम की तरफ अपने बच्चों का रुख कराइए, अपने मस्जिद के इमाम के पास अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारा माहौल यह है, आज हमारा नौजवान बड़ा हो करके माँ को गालियां देता है, बाप को मारता हुआ नजर आता है। अरे हमने तो ऐसे नौजवानों को, बदमाशों को देखा है जिन्होंने भरे चौक में अपने बाप की कॉलर पकड़ करके उनके चेहरों पर थप्पड़ें मारी है। ये क्यों? ये नशा न मिलने की वजह से, ये आवारागर्दी करने की वजह से, ये दीन में दीन की तालीम न मिलने की वजह से। काश आप दारुल उलूम नौमान रजा जो आपके शहर का मदरसा है, इस मदरसे के अंदर अगर आप अपने बच्चों को भेजते, काश आप अपने इमाम कारी अब्दुल रशीद साहब के पास में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते, वो बच्चों को हाफिज कुरान बनाए होते, दीन की तालीम दिलाए होते, उन्हें ये बताए होते अल जन्नतो ताता अक़दामिल उम्महात कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो यही बच्चा, यही बेटा बड़ा होकर के माँ को गालियां देने वाला नहीं, बाप को फटकारने वाला नहीं, बल्कि इसी हदीस को सुन करके माँ के कदमों को चूमता हुआ नजर आता, बाप के हाथों का बोसा लेते हुए नजर आता। हाय अफसोस, हमने दिलाई तो दुनिया की तालीम दिलाई, दीन की तालीम की तरफ कोई तवज्जो ना दी। यकीनन आप दीन की भी तालीम दिलाइए, दुनिया की भी तालीम दिलाइए। और आखिरी मिसाल और आखिरी बात कह करके जो वक्त दिया गया था 11:15 वो खत्म हो गया। 5 मिनट में आपका मैं वक्त लूंगा, तो दीन की तालीम जरूर दिलाइए, जरूर दिलाइए। बहुत सारे दुनियावी तालीम इंग्लिश स्कूल पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, मगर फायदा किस में, नुकसान किस में। ये मिसाल, ये मेरा मौजू भी नहीं था, पर बात आ गई तो बताता हुआ चलूं। आखिरी बात सुनी इधर कि दुनियावी तालीम से नुकसान क्या है और दीन की तालीम से फायदा क्या है। मिसाल दे रहा और समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। ये जरा ये बताइए, जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो ये बताइए जो बस्ता होता है उसका दफ्तर, वो सीने से लगाता है कि पीठ की तरफ रखता है? जोर से बोलो ना। माशाअल्लाह, बुरहानपुर वाले अच्छे लोग हैं जो जबान से कह रहे हैं, वरना बहुत सारी जगह पर होता यह है कि 2 तोले की जबान नहीं हिलाते, 2 किलो का सर हिलाते हैं। बड़ा बड़ा बाप अच्छे लोग हैं कि आप 2 किलो का सर नहीं
نہیں ہلا رہے ہیں بلکہ 2 تولے کی سے زبان ہلا رہے ہیں. تو یہ بتاؤ دفتر آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے. گویا کہ وہ اسکول جاتے جاتے اپنی ماں کو درس دے رہا ہے, اپنے باپ کو بتا رہا ہے میرے باپ دیکھ لے, اے میری ماں دیکھ لے, جو تو یہ تعلیم دے رہا ہے دلوا رہے ہیں نا, یہ تعلیم آگے آنے والی نہیں, سب پیچھے رہ جانے والی ہے, سب پیچھے رہ جانے والی ہے. مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, جب آپ کا بچہ مولانا عبدالرشید صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, دارالعلوم نعمان رضا میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو قاعدہ ہو یا سفارہ ہو یا کلام پاک ہو, وہ پیچھے رکھتا ہے یا سینے سے لگاتا ہے؟ گویا کہ اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہے میرے ماں باپ تمہارے لیے مبارکباد ہو کہ جو تم مجھے تعلیم دلوا رہے ہو, یہ ایسی تعلیم ہے جو پیچھے نہیں رہ جانے والی ہے, اور یہ تعلیم تو ایسی تعلیم ہے جو میرے سینے میں محفوظ رہنے والی ہے, جو مجھے دنیا میں بھی کام آئے گی, قبروں میں بھی کام آئے گی, میدان محشر میں بھی کام آئے گی. میرے پیارے اپنے بچوں کو ان علماء سے قریب کرے, اپنے بچوں کو میلاد مصطفیٰ کے آداب سکھائے. یہی آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. اے میرے پیارے, پھر کبھی میرا موضوع تھا آج بچپن رسول سرکار کا بچپنا کیسے گزرا, وہ موضوع تھا پر وقت ہی نہیں ملا. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آنا ہوا تو سرکار علیہ السلام کا بچپنا اس حوالے سے گفتگو کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اے نوجوانوں اپنے آپ کو نمازی بناؤ, خود نمازی بنے, اپنے اولادوں کو نمازی بنائے. جب ایسا نوجوان جو نمازی بنتا ہے, سرکار کا میلاد مناتا ہے, اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور موت آ ہی جاتی ہے, اور جب اس بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر غمگینی کے آثار نہیں بلکہ اس کے چہرے پر نور و نعمت کی بارش ہوا کرتی ہے, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا نوجوان جو ماں باپ سے پیار کرنے والا ہو, جو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا ہو, جو سچا پکا عاشق رسول ہو, جو میلاد مصطفیٰ منانے والا ہو, جو نمازی ہو, جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ایسا خوشبو سے کھل جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیرے امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا, سن کے مسلم کا تہرانہ, جگمگا اٹھا زمانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, آسیوں کے لاج والے, عرش کی معراج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پھر بلا لو در پہ آقا, پھر دکھا دو روزہ تیرا, جب سے دیکھے ہیں مدینہ, یہاں نہ دل لگے نہ میرا. یا نبی سلام علیکہ,
صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، صدقہ دو احمد رضا کا، یا نبی سلام